Question number 8. There is a steering wheel and there are two anti-clockwise forces acting on it. Anti-clockwise forces acting on it of 5 Newton and 5 Newton. 5 Newton. The diameter of the wheel is 0.5. The diameter of the wheel is 0.5 meter. Calculate movement of force applied. Now in this question, movement of force applied is equal to force into perpendicular distance. Now force in this question is this one, the another one is this one. Now the moment of force about the point, fixed point, steering wheel जो हम घुमाते हैं, that is fixed in the middle at this point O. So the torque created by this point would be 5 Newton and perpendicular distance would be this one. Now the diameter is 0.5 meter, so perpendicular distance would come out to be 0.25. Diameter का आधा, radius ही तो आएगा. Now this will come out to be 5 into 25 by 100, and this comes out to be 25 into 5 is 125 by 100, and it comes out to be 1.25 Newton meter. Same would be created by this force. Same would be created by इससे भी उतना ही तो जनरेट होगा, और इससे भी एंटी क्लॉकवाइज और इससे भी एंटी क्लॉकवाइज सेम जनरेट होगा. Same for the another one will also create this moment of force only. So the total moment of force created by this steering wheel would be 1.25 Newton meter plus 1.25 Newton meter, and it comes out to be 2.5 Newton meter anti-clockwise. Alright, moving on to the next question. There is a meter rule and weight of the meter rule is not given, and there is a mass of 50 gf suspended at one of its end, that is 100 centimeter, and it is balanced at the mid of this scale. So where should be a weight of 100 gf is suspended to keep the rule horizontal. तो हमें पता है कि ये क्या जनरेट करेगा, क्लॉकवाइज मोशन. तो इस क्लॉकवाइज के लिए हमें कोई एंटी क्लॉकवाइज इधर चाहिए, तो हमें नहीं पता है, लेकिन हमें ये पता है कि इसका जो वेयर शुड बी अ वेट ऑफ 100 gf सस्पेंडेड. तो हम लेट कर लेते हैं कि ये 100 gf जो है सेंटर से x डिस्टेंस पे जो है सस्पेंड किया गया 100 gf. हम इसमें ये gf है या kgf है या मीटर है या सेंटीमीटर, इसके लिए वरी नहीं करेंगे, लेकिन हाँ दोनों तरफ यूनिट सेम होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि आपने एंटी क्लॉकवाइज में kgf में ले लिया और क्लॉकवाइज में जो है gf में ले लिया, ग्राम फोर्स में ले लिया, इसमें किलोग्राम फोर्स में ले लिया, एक तरफ मीटर में ले लिया, एक तरफ सेंटीमीटर में. वी विल अबाउट इट. हम सीधे सॉल्व करेंगे, दोनों को इक्वेट करें, दोनों तरफ जो है यूनिट सेम होनी चाहिए और वो उसी में आ जाएंगी. तो इन दिस क्वेश्चन व्हाट विल बी डूइंग, एंटी क्लॉकवाइज पहले हम निकालते हैं, क्लॉकवाइज निकालते हैं कितनी जनरेट होती है. क्लॉकवाइज कितनी जनरेट होती है, क्लॉकवाइज इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. This will come out to be 50 gf into 100. This is the center of the rule. So this will come out to be 50 centimeter. Alright. अब हम एंटी क्लॉकवाइज निकालते हैं, कितनी होगी एंटी क्लॉकवाइज. And the anti-clockwise would come out to be 100 gf into x. Alright. We will equate clockwise and anti-clockwise. 50 gf into 50 is equal to 100 gf into x. Now this would come out to be 0, 0, 0, 0, 25. X will come out to be 25 gf. 25, sorry. X will come out to be, this would cancel out, huh? This whole thing would cancel out. So X would come out to be 25
25 centimeter. The distance would be 25 centimeter. Where should be the weight of 100 GF suspended? 100 GF should be suspended at the distance of 25 centimeter from the center, or rather we can say 25 centimeter from the starting of it. ये हमारी 25 हो जाएगी ना, ये पूरी 0 से 50 है, ये 25 हो जाएगी, तो ये भी तो हमारी 25 सेंटीमीटर हो जाएगी। कभी कभी कोई क्वेश्चन आता है कि यहाँ से अगर 20 सेंटीमीटर पे है तो स्टार्टिंग से कितना होगा, 30 सेंटीमीटर पे हो जाएगा। ये यहाँ पे समझ में आया? मैं एक बार और क्लियर कर देता हूँ ठीक से। यहाँ पे क्या हुआ है, एक्चुअली ये 50 GF इंटू 50 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 GF इंटू x, ठीक है। तो GF और GF ये यूनिट ग्राम फोर्स कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। this 0 will get cancel out and 5 into 5 will come out to be 25 centimeter. Alright, now moving on to the next question, number 9. There is a knife is at the distance of 58 centimeter. A block of mass 20 GF is suspended at the end of it. तो इसमें पूछा क्या गया इस क्वेश्चन में हमसे, मास ऑफ द मीटर रूल पूछा गया है। मास ऑफ मीटर रूल, एज वी ऑल नो किसी भी चीज का मास जो है किधर सस्पेंड होता है, 50 सेंटीमीटर पे होता है। तो यहाँ पे 50 सेंटीमीटर पे हम इसको मास x सेट कर लेंगे, x कुछ भी व्हाटएवर इट इज, जो भी निकल के आएगा 50 सेंटीमीटर का, और इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल लेंगे, क्योंकि ये तो रोटेट नहीं होगा ना, दिस विल नॉट रोटेट अबाउट दिस पॉइंट, दिस विल रोटेट अबाउट दिस पॉइंट ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज जनरेट करेंगे। ये कैसे जनरेट करेगा, दिस विल जनरेट अ क्लॉकवाइज मोशन एंड दिस रूल विल जनरेट, द मास ऑफ द रूल विल जनरेट एंटी क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज। ऑलराइट, तो क्लॉकवाइज शुड बी इक्वल टू द एंटी क्लॉकवाइज। अगर इक्विलिब्रियम में है, अगर ये मोशन नहीं कर रही है तो देन क्लॉकवाइज हम निकालते हैं, कितना आता है। क्लॉकवाइज वुड बी 20 GF into 58. Now, important thing, what will be this distance? This point is 100 centimeter. Then this distance would be 100 minus 58. What it would be? 100 centimeter minus 58. यही तो ये distance होगी भाई जी। 58 के बाद 60 आएगा, 60 से 100 तो 42 ही तो ये होगी, 42 सेंटीमीटर होगी। ऐसा ना करना कि मतलब 100 देख लो तो 100 है, हम इस पिवटेड पॉइंट से डिस्टेंस उसकी निकालेंगे, ठीक है। तो दिस विल कम आउट टू बी 42 सेंटीमीटर। एंटी क्लॉकवाइज कितनी हो जाएगी, वेट हमें पता नहीं तो एक्स GF ले ले रहे, इनटू दिस डिस्टेंस वुड बी 50 सेंटीमीटर पे सेंटर ऑफ मास होता है स्केल का 50 सेंटीमीटर, 58 तो 58 से 50, दिस वुड कम आउट टू बी 8 सेंटीमीटर। एंटी क्लॉकवाइज वुड बी इक्वल टू क्लॉकवाइज, या फिर हम इसे नेगेटिव लेते हैं, एक को पॉजिटिव ले लेते हैं, एक को नेगेटिव ले लेते हैं, दैट शुड बी सम ऑफ द ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी इक्वल टू 0। तो हम इसको 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे ना, जैसे देखो मान लो क्लॉकवाइज प्लस एंटी क्लॉकवाइज शुड बी इक्वल टू 0। अगर हम क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लेंगे तो ये 0 आ जाएगी, तो एंटी क्लॉकवाइज शुड बी इक्वल टू क्लॉकवाइज आना चाहिए, ठीक है, यही तो आना चाहिए, वही बात है। चाहे तो हम दोनों को इक्वल रख देते हैं, व्हाटएवर वी आर डूइंग। ओके, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, क्लॉकवाइज शुड बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज, देन टू 20 GF into 42 centimeter is equal to x GF into 8 centimeter. Now GF rather don't cut it, 20 into 42 upon 8, 8 6 are 42, 6 to 12, 120 gram force. Now what is the value of GF is x. What x will come out? X will come out to be 120 ग्राम फोर्स, मतलब 120 ग्राम फोर्स जो है इस मीटर रूल का मास है और ये इसको बैलेंस कर लेगी, ठीक है।